Good morning, student of Capital Public School. Today we will read present tense. Before this tense, I have read past tense. Four types of past tense: present, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Today we will read present indefinite tense. Present means the running time where we are doing any kind of action. Now, first type of present indefinite tense. There is a four kind of present tense and four kind of past tense and four type of past future tense. Same like present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Like this, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Today we will read present indefinite tense. Identity or identify. First form of the verb in a sentence. First form of the verb in a sentence. Helping verb, short form of the helping verb, HV. Helping verb, we are, I am writing full form helping verb, but also remember it is SV is the short form of helping verb. Do and does. We use with, do, we use do with the plural number subject and does with singular number subject, but some places we do not use declarative sentence, assertive sentence, or simple sentences helping verb. Now, rules. Assertive sentences. Rules for assertive sentence. Subject SUB means short form of subject plus verb की first form plus S or ES plus object. OBJ means short form of the object. We use S or ES in the verb in the first form of the verb with singular number subject.
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। हम एस या ईएस का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ में करते हैं, बट विद द प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट but the plural number of the subject, we do not use s or es in the first form of the verb। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राम रीड्स द बुक। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्लस प्लस एस। दे गो टू द मार्केट। दे गो टू द मार्केट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इन निगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बी यूज हेल्पिंग वर्ब। हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके लिए रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एज एग्जाम्पल में लता राइट्स अ लेटर। लता राइट्स अ, sorry, I am giving the example of assertive, but this is the rule of negative sentence। हमने उदाहरण सकारात्मक वाक्य का दे दिया था, जबकि ये नकारात्मक वाक्य लता डस नॉट राइट अ लेटर। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। डॉग्स डू नॉट bark in the night। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
plus first form of the verb plus object, or at last question mark. Does child drink the milk? Does child drink the milk? सिंगुलर का do the boys play football? प्लूरल का WH फैमिली के लिए होता है WH फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Now, where do you live? This is the plural numbers. Example, plural number subject. What does the boy do in the field? This is the singular number subject. So, the present indefinite tense means running time, identity, first form of the verb in a sentence. किसी वाक्य में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है तो हम समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है. एच बी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब. इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज. डू और डज. वी यूज डू विद द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट. हम डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं. एंड डज विद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट. और डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ में करते हैं. रूल्स है असर्टिव के. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ देयर इज नीड एस और ई एस. हाँ, अगर यस अथवा ई एस की जरूरत है प्लस ऑब्जेक्ट. उसके बाद में नोट आगे लिखा है ब्रैकेट में. वी यूज एस और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट. एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में फर्स्ट फॉर्म में हम एस अथवा ई एस का प्रयोग करते हैं. जबकि बट द प्लूरल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट वी डू नॉट यूज एस आर ई एस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बहुवचन कर्ता के साथ हम उसके क्रिया में यस या ई एस नहीं लगाते हैं. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस नहीं लगाते हैं. एग्जाम्पल्स इसके हैं. राम रीड्स द बुक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ है इसलिए वर्ब में एस लगा है. दे गो टू द मार्केट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है लता डज नॉट राइट ए लेटर. सिंगुलर सब्जेक्ट है. डॉग्स डू नॉट बार्क इन द नाइट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से जो बिगिन होते हैं स्टार्ट होते हैं. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का। डू द बॉयज प्ले फुटबॉल, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड का है। The word of WH family plus helping verb plus subject plus first form of the verb plus object. Where do you live? Plural का. What does the boy do in the field? Singular का. Now class 6 negative, assertive and both interrogative के फोर एग्जाम्पल आपको हर के करना है। क्लास 7 assertive, negative and both interrogative के 5 example is class 8 assertive, negative and both interrogative का 6 एग्जाम्पल्स इसका सेपरेट करना है आपको। दिस इज योर क्लास होमवर्क। नाउ योर present indefinite tense is now completed. Thank you.